ایک وقت کی بات ہے، ایک داور دراز گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان نہایت ایماندار، سادہ دل اور عقل مند تھا، لیکن اس کی بیوی وہ خوابوں میں رہنے والی، دولت کی لالچ میں اندھی اور چالاک عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف زیور، سونا اور مہنگے کپڑے چمکتے تھے۔ ایک دن کسان نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے آم کے بیج جمع کیے ہیں، اگلے ہفتے باغ لگاؤں گا، برسوں بعد اس کے پھل ہوں گے اور ان سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ بیوی حیرت سے ہنسی، مدد؟ کیا تم سچ میں اپنے آم مفت میں بانٹو گے؟ کیوں نہ بیچ کر سونا خریدا جائے؟ کسان نے نرمی سے جواب دیا، سونا دلوں کو خوشی نہیں دے سکتا، لیکن کسی بھوکے کے چہرے پر مسکراہٹ مجھے سکون دے گی۔ بیوی غصے سے بولی، تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہو، اگر دولت ہمارے دروازے پر آ بھی جائے تم اسے خیرات میں بانٹ دو گے؟ کسان مسکرا کر خاموش ہو گیا، مگر اس نے اپنا منصوبہ جاری رکھا۔ جلد ہی آموں کا چھوٹا سا باغ الفاق آیا۔ کسان ہر روز ان کی حفاظت کرتا، پانی دیتا، گھاس صاف کرتا۔ کئی سال بیت گئے اور ایک دن باغ میں سبز پکے ہوئے آم جھومنے لگے۔ گاؤں والے اس باغ کی خوشبو سے کھنچے چلے آتے۔ کسان نے اعلان کیا کہ جو بھی آم چاہے لے جائے۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچے، بوڑھے سب نے آم کھائے اور دعائیں دیں، مگر بیوی وہ جل رہی تھی۔ ایک رات بیوی خاموشی سے الفاٹے اور آم توڑ کر پاس کے قصبے میں بیچنے لگی۔ وہ ہر ہفتے چپکے سے درجنوں آم لے جاتی، بازار میں بیچتی اور سونا اکٹھا کرتی۔ کسان کو علم نہ تھا کہ اس کے آم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دن کسان نے نوٹ کیا کہ بہت سے آم درختوں سے غائب ہو رہے ہیں، جبکہ اتنے گاؤں والے بھی نہیں آتے تھے۔ اسے شک ہوا۔ اس نے رات کو باغ میں چھپ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کسان نے جلدی سے چھپ کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ چور کوئی اور نہیں، خود اس کی بیوی تھی، جو بڑی ہوشیاری سے آم ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ کسان آہستہ سے بولا، کیا اب تم اتنی لالچی ہو گئی ہو کہ میرے خواب بھی چرا لوگی؟ بیوی چونکی، لیکن پھر غصے سے بولی، تم اپنے خوابوں میں رہو، میں اپنے حقیقت میں۔ تمہیں کچھ ملے نہ ملے، مجھے دولت تو مل رہی ہے۔ کسان نے دکھی دل سے کہا، یاد رکھنا، دولت جمع کرنے سے دل امیر نہیں ہوتے، دل بانٹنے سے ہوتے ہیں۔ بیوی نے سونا اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑا اور غرور سے گھر کی طرف چل دی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی لالچ کا یہ سفر ایک دن اسے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ کہتے ہیں لالچ کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، اور جب دل میں دولت کی ہوس جاگ جائے تو رشتے، اعتبار اور عزت سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسان کی بیوی نے اب آموں کو چپکے چپکے بیچنا روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ رات کو سب کے سونے کے بعد ٹوکری بھر کے آم توڑتی، علی صبح قصبے کے بازار میں بیچ آتی اور دن چڑھنے سے پہلے لوٹ آتی۔ اس کے پاس سونا جمع ہونے لگا اور اس کی آنکھوں میں غرور کی چمک بڑھنے لگی۔ کسان کچھ نہ کہتا، لیکن اس کا دل روز دکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ چھپ نہیں سکتا۔ بیوی نے نہ صرف آم چرائے بلکہ اس کے اعتماد کو بھی چوری کیا۔ کسان نے فیصلہ کیا کہ وہ وقت آنے پر جواب دے گا، مگر دانائی سے، جیسے ہمیشہ دیتا آیا ہے۔ ایک دن کسان نے اپنے پرانے دوست رحمت کو بلایا اور کہا، کل رات تم میرے باغ کے پاس چھپ جانا، میں چاہتا ہوں تم ایک سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ رحمت حیران ہوا، مگر مان گیا۔ اگلی رات چاندنی چھن چھن کر درختوں سے اتر رہی تھی۔ بیوی ہمیشہ کی طرح ٹوکری لے کر نکلی۔ رحمت جھاڑیوں میں چھپا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بیوی نے آم توڑنے شروع کیے، کسان سامنے آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، کسان نے سخت لہجے میں کہا۔ بیوی چونکی، لیکن سنبھلتے ہوئے غرور سے بولی، تو کیا ہوا؟ یہ درخت بھی تو میرے گھر کے ہیں۔
मैं चाहूं तो बेचूं, चाहूं तो खाऊं। रहमत भी सामने आ गया और बोला, बीबी, ये दरख्त तुम्हारे शौहर ने अपने हाथों से उगाए हैं। उनकी नीयत नेक थी, मगर तुमने तो इसे चूर बना दिया। बीवी गुस्से से बोली, तुम दोनों मर्द मिलकर मुझे सिखा रहे हो, मैं अपने हक का ले रही हूं। किसान ने आहिस्तगी से कहा, हक बांटने में है, चुराने में नहीं। अगर तुम आम मांगती तो मैं सारा बाग दे देता, लेकिन छप कर लेना, धोखा देना, ये लालच है, प्यार नहीं। बीवी खामोश रही, मगर उसकी नजरें अब भी जिद से भरपूर थीं। अगले दिन किसान गांव की पंचायत के पास गया। वो सच बताना चाहता था, लेकिन इसने बीवी का नाम ना लिया। सिर्फ इतना कहा कि कोई इसके बाग से आम चोरी कर रहा है। गांव वालों ने कहा, हम चौकीदारी का बंदोबस्त करते हैं, चोर जल्द पकड़ा जाएगा। चंद दिन बाद गांव के 2 बच्चे आम खाते हुए पकड़े गए। बीवी ने झट से शोर मचाया, देखा, यही चोर हैं, उनको सजा दो। किसान ने बच्चों को बुलाया, प्यार से पूछा, बेटा, आम कहां से मिले? बच्चों ने मासूमियत से कहा, हमें तो वो आंटी देती हैं, रोज सुबह कहती हैं, जाके बाजार में बेचो और कुछ रुपए ले आओ। बीवी का चेहरा जर्द हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। किसान ने कहा, बस यही काफी है, न किसी को सजा चाहिए, न शोर, सिर्फ सबक चाहिए कि सच्चाई खुद बोलती है और लालच एक ना एक दिन मुंह के बिल गिरती है। बीवी शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि गुस्से से घर के अंदर चली गई। लेकिन इसके दिल में एक सवाल ने घर कर लिया, क्या मैं वाकई चूर हूं या अक्लमंद? मगर इसे क्या मालूम था, असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन बाज औकात किसी की दानाई वक्त से पहले ही इंसान का दिल नर्म कर देती है। किसान की बीवी का दिल अब कश्मकश का शिकार था। एक तरफ इसकी लालच थी, जो हर दिन इसे सोना इकट्ठा करने पर अलिफाकसाती थी, और दूसरी तरफ किसान की वो नर्म बातें, जो खामोशी से इसके दिल पर दस्तक देती थी। इस रात किसान ने बीवी से कहा, देखो, तुम जैसी हो, मैं वैसे ही तुम्हें कबूल करता हूं, मगर अगर तुम मेरी जिंदगी में शरीक हो, तो मेरे ख्वाबों में भी शरीक बनो। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं। बीवी ने तंज से पूछा, और अगर मैं ना बदली तो? किसान मुस्कुराकर बोला, तो भी तुम मेरी बीवी हो, मेरा फर्ज है तुम्हें अच्छे रास्ते पर लाना, चाहे वक्त लगे या दर्द। अगले दिन किसान ने बीवी के सामने एक तजवीज रखी, कल से हर सुबह तुम गांव के बच्चों में अपने हाथों से आम तकसीम करो, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ना मैं कुछ कहूंगा, ना कोई सवाल होगा। बीवी ने फौरन इनकार किया, क्या मैं नौकरानी हूं जो बच्चों को फल बांटे? किसान ने नरमी से जवाब दिया, एक बार कोशिश करके देखो, शायद जो खुशी तुम सोने में ढूंढ रही हो, वो बच्चों की मुस्कुराहट में मिल जाए। बीवी खामोश रही, लेकिन दिल में एक तजस्सुस जाग, आखिर ये क्या खुशी है जो उसे बांटने में मिलती है। अगली सुबह बीवी ने बादल नखास्ता आमों की टोकरी ली और गांव के रास्ते पर जा खड़ी हुई। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हुए इसके पास से गुजरे, उसने लरसते हाथों से एक बच्चे को आम दिया। बच्चा खुशी से उछल पड़ा, आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। और वो भागता हुआ बाकी बच्चों को बुलाने लगा। थोड़ी देर में दर्जनों बच्चे कतार में लग गए। हर बच्चा आम लेते हुए दुआएं देता, अल्लाह आपको सलामत रखे आंटी, आपका दिल बहुत बड़ा है। बीवी खामोश खड़ी सुनती रही। इसके चेहरे पर अजीब सी नरमी आ गई थी। वो हफ्ता गुजरा और बीवी अब खुद टोकरी लेकर खड़ी होने लगी। वो बच्चों के नाम जानने लगी, कुछ को प्यार से सर पर हाथ फेरती, कुछ के कपड़ों की मरम्मत के मशवरे देती। एक दिन उसने किसान से कहा, पता है,
एक बच्चा रोज आम लेकर अपनी बीमार माँ को देता है। इसकी माँ मेरे लिए दुआ करती है। किसान ने मुस्कुरा कर कहा, वही तो दौलत है जो दिलों में जमा हो। बीवी खामोश हो गई। इसकी मुट्ठी में अब कोई सोना नहीं था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो ना बाजार देता है ना खजाना, सिर्फ खिदमत से मिलता है। मगर किस्मत को शायद अभी आखिरी मोड़ दिखाना बाकी था। अगले दिन गांव में एक शाही काफिला दाखिल हुआ। ऊंट, घोड़े, सिपाही और दरमियान में एक सवारी बादशाह का खास वजीर जो इलाके के दौरे पर आया था। उसने किसान के आमों की खुशबू महसूस की और दरख्तों की तरफ बढ़ा। वजीर ने कहा, क्या ये आम खरीदे जा सकते हैं? किसान ने मुस्कुराकर आम का एक टोकरा आगे बढ़ाया। ये आपके लिए तोहफा है। बीवी ने चौंक कर वजीर को देखा। तोहफा? सोने के बदले बेचो। ये मौका बार बार नहीं आएगा। वजीर ने आम का एक टुकड़ा खाया और कहा, ये सिर्फ आम नहीं, ये नियत की मिठास है। और वो सीधा बादशाह को रिपोर्ट देने रवाना हो गया। कभी कभी किस्मत इंसान को इस मकाम पर ला खड़ा करती है जहां उसकी असल पहचान होती है। यही मकाम दानाई और लालच के दरमियान फर्क को जाहिर करता है। वजीर जब वापस गया तो वो आम की मिठास से ज्यादा किसान की बातों के जायके में खोया हुआ था। उसने बादशाह के सामने कहा, जहां सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, वहां एक किसान है जो खुशी बांटता है। इसके आम सिर्फ फल नहीं, दुआएं हैं। बादशाह मुतासिर हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया, इस किसान को दरबार में बुलाया जाए। हम इसे अपनी शाही नर्सरी का निगहबान बनाना चाहते। गांव में खबर आग की तरह फैली। बादशाह ने दाना किसान को दरबार में बुलाया है। बीवी खुशी से झूम उठी। देखा, आखिर मेरी किस्मत जाग गई। अब हमें सोना, जेवर, महल, सब कुछ मिलेगा। किसान ने खामोशी से सफर की तैयारी शुरू की, लेकिन इसकी आंखों में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। अगले दिन किसान और बीवी शहर की तरफ रवाना हुए। महल के दरवाजे पर सख्त पहरा था, लेकिन जब किसान ने अपना नाम बताया, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वजीर ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। हमें अब जैसे लोगों की जरूरत है जो दिल से सोचते हैं। बीवी चमकती आंखों से दरबार का हर कोना देख रही थी। सोने की छतें, चांदी की कुर्सी, नौकर चाकर। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। बादशाह ने किसान से कहा, हम तुम्हें शाही बागात का इंचार्ज बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके बदले तुम्हें दौलत, जमीन और इज्जत दी जाएगी। बीवी की आंखें चमकने लगीं, मगर किसान ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने सर हिलाया। किसान बोला, मैं सिर्फ इस शर्त पर यह जिम्मेदारी कबूल करूंगा कि मुझे शाही बाग के आम लोगों में बांटने की इजाजत हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान, वजीर मुस्कुरा रहा था और बीवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।